Okay, so let us start with next question. A car moving with a speed of 50 km per hour can be stopped by brakes after applying can be stopped by brake after at least 6 meters. If the same car is moving at a speed of 100 km per hour, the minimum stopping distance is. शायद ये क्वेश्चन हुआ है या तो इस टाइप का क्वेश्चन हुआ है. आपके पास क्वेश्चन ऐसा है कि यू हैव अ कार विच इज मूविंग with a speed of 50 km per hour. When you apply brake, then brake लगाते से जगह पे गाड़ी नहीं रुकता है. It goes some distance and then stops. तो stopping distance आपको 6 मीटर बताया है पहले केस में. दूसरे केस में बोला है कि same car is moving at 100 km per hour. Now what will be the minimum stopping distance? You know v square equal to u square plus 2as. Stopping distance मतलब final velocity 0. राइट, तो v इक्वल टू 0 और a आएगा -a क्योंकि d एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन है. तो पुट वैल्यू 0 इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as मतलब u स्क्वायर इक्वल टू 2as. राइट, तो क्योंकि गाड़ी सेम है, रोड सेम है, तो d एक्सेलरेशन सेम होगा. मतलब u स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू s. मतलब स्टॉपिंग डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वेलोसिटी. तो s2 by s1 is proportional to मतलब equal to u2 by u1 का स्क्वायर. तो s2 इक्वल टू u2 कितना है 100 और u1 कितना है 50 और दोनों के यूनिट सेम है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज बोथ ऑफ देम आर इन सेम यूनिट्स. तो डजंट मैटर, कैंसिल होगा, यूनिट्स किलोमीटर पर आवर विल कैंसिल आउट. इसका स्क्वायर s1 1 जा एंड 2 जा 2 स्क्वायर इज 4 into s1. what is s1? 6. 4 into 6 is 24 meter. The stopping distance is option number D, 24 meter. Next question. The velocity of a bullet is reduced from 200 meter per second to 100 meter per second while traveling through a wooden block of 10 centimeter. The retardation assuming to be uniform will be. आपके पास एक wooden block है. Let's take this as a wooden block. So there is a bullet. So you have a bullet. Let's say, let us take a bullet. So this bullet when passes through this block, इस ब्लॉक में जब पास होगा तो उसका स्पीड 200 से हो गया 100. So it slows down after passing through this. तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये. Then what they are asking you is retardation assuming to be uniform. Thickness of the block is 10 centimeter. दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है. नंबर 1, velocity when it enters is 200 and when it just leaves is 100. तो 200 and 100. तो इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है that is 200 and final is 100. After traveling through a distance of 10 centimeter, ये सेंटीमीटर है और यहाँ पे स्पीड है मीटर पर सेकेंड में. मीटर पर सेकेंड में. रिटार्डेशन यूनिफॉर्म कब होगा? रिटार्डेशन यूनिफॉर्म तब होगा जब मटेरियल इक्वली डेंस होता है. मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं पे मटेरियल ज्यादा है कहीं पे कम है. ये जो ब्लॉक है इट इज इक्वली डेंस, तब आप बोलते हो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन. राइट, इतना डिटेल की जरूरत नहीं है बट यू नीड टू हैव दिस आइडिया. आपको क्या फाइंड करना है? रिटार्डेशन क्या है? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. खत्म. वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as. a equal to v square minus u square by 2s. v is 100 ना. 100 मतलब 10 पावर 2, उसका स्क्वायर 10 पावर 4. ये 10 पावर 2 है, उसका भी स्क्वायर 10 पावर 4. u is 200 मतलब 2 into 100. 2 into 100 मतलब 2 into 10 पावर 2, उसका स्क्वायर 410 पावर 4. 2 into s is 10 सेंटीमीटर मतलब 10 पावर -1 मीटर. तो 10 पावर -1 मीटर. तो ये आपके पास आ गया -3/2. ये 1 - 4 is -3/2 और 10 पावर 4 हमने निकाल लिया था कॉमन अपॉन 10 पावर -1. तो ये आ जाएगा आपका -1.5. ये जाएगा ऊपर 10 पावर 5. तो 1.5 या तो 15 into 10 पावर 4. तो -15 into 10 power 4 meter per second. That is a retardation assuming it to be uniform. नेगेटिव मतलब रिटार्डेशन है.
Next question. Next question. A body falls from rest in the gravitational field of the Earth. The distance traveled in the 5th second of its motion is. It's a joke. A very simple question. Distance traveled in nth second is u plus a by 2 2n minus 1. From rest मतलब u is 0. Gravitational field मतलब a equal to g और g के दी है 10. 5th second n equal to 5. So s5 is 0 plus 10 by 2, 2 into 5 minus 1. 1s and 5s are. This is 9. 9 5s are 45 meter. Done. Simple question था. Extremely simple question था. Next question. If a ball is thrown vertically upwards with speed u, the distance covered during the last t seconds of its ascent. Good question and easy question. You have a ball which is thrown up with initial velocity of u. तो इसका initial velocity है u. So what is the distance travel? मान लो कि maximum वो यहां तक जाता है. So maximum it goes up to this height. Okay. उन्होंने आपको पूछा है what is the distance traveled in the last t seconds. तो एक काम करते हैं, टोटल टाइम हम लोग मान लेते हैं, टाइम ऑफ एसेंट मान लेते हैं कैपिटल टी. मतलब टोटल टाइम इट नीड्स टू गो फ्रॉम ग्राउंड टू मैक्सिमम हाइट. उन्होंने आपको पूछा है कि आखिरी के टी सेकेंड में, मान लो पार्टिकल का ये आखिरी का टी सेकेंड है, इसको मैं बोलता हूँ बी पॉइंट, इसको बोलता हूँ ए पॉइंट और ये है ग्राउंड. ठीक. तो आखिरी के टी सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग यू. तो देयर आर टू मेथड्स टू सॉल्व दिस. हम उसमें से एक ही देखेंगे, सिंपलेस्ट वन. तो सबसे पहले यू शुड नो, अगर मुझे आखिरी के टी सेकेंड्स का देखना है, क्या पूछा है, डिस्टेंस ट्रेवल ना, है ना, द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग लास्ट टी सेकेंड्स. मतलब आई विल हैव टू यूज s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर फॉर लास्ट t सेकेंड्स. तो आई विल हैव टू यूज s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. उसके लिए मुझे b पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी पता होना चाहिए, क्योंकि मुझे आखिरी के t सेकेंड मतलब मैं डिस्टेंस कहां से मेजर कर रहा हूं, यहां से यहां तक, ये है आपका s. तो यू आर मेजरिंग दिस डिस्टेंस s, और इस s में आपको लगता है u. कौन सा u? b पॉइंट, नीचे का नहीं, राइट. तो आई विल डू वन थिंग, आई विल डिवाइड इनटू टू केसेस. तो इसको दो केस में डिवाइड कर दोगे तो ज्यादा अच्छे से समझेगा. आप बोलोगे ये है इनिशियल वेलोसिटी u1, यहाँ पे ये है फाइनल v1. ये पहले केस का फाइनल, दूसरे केस का हो गया इनिशियल, और यहाँ पे आ गया फाइनल. तो अगर आपको s डिस्टेंस s2 बोल देता हूं मैं, और ये डिस्टेंस में बोल देता हूं s1, तो मुझे अगर s2 फाइंड करना है तो u2 और ये सब लगेगा, राइट. u2 कैसे फाइंड करोगे? u2 इज v1, पहले केस का फाइनल इस सेकेंड केस का इनिशियल, है ना. ऑब्जेक्ट रुकेगा नहीं ना, ऑब्जेक्ट तो जा रहा है, हम उसको वैसा बोल रहे हैं. हम बोल रहे हैं कि टोटल t सेकेंड है, उसमें से पहले ग्राउंड से बी पे गया, पर रियलिटी में वो सीधा सीधा जाता है, वो रुकता नहीं, राइट. तो यू नीड टू नो दिस कि आपको पहले केस का फाइनल मतलब दूसरे केस का इनिशियल क्यों बोलते हैं, क्योंकि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. तो v1 इक्वल टू u1 प्लस a1t. मैं एक काम करता हूं, मैं ये a1 a2 की बात ही नहीं करूंगा. हाँ, टाइम बोल सकते हो, क्योंकि वो तो a तो g रहेगा हमेशा, राइट. अब u1 is u, correct. a is minus g because it is going against the gravity. Time in the first case, look, total time t था, उसमें से ये small t है,
तो पहले केस का टाइम कितना, कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी, तो ये आ गया कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी। ये आ गया आपके पास पहले केस का फाइनल, मतलब दूसरे केस का इनिशियल। बट u2 is v1 that is equal to u minus g t minus t, correct? Use this here, okay, and solve. अब okay, तो now s फाइंड करना था आपको, s2 फाइंड करना है। s2 इक्वल टू, एक काम करते हैं, तो थोड़ा डायरेक्टली मैंने अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा कर लेते हैं। टाइम ऑफ एसेंट निकाल लेते हैं। हाउ डू यू फाइंड आउट टाइम ऑफ एसेंट? टाइम ऑफ एसेंट मतलब ग्राउंड से सीधा टॉप तक, ग्राउंड पे वेलोसिटी कितना था u, टॉप पे कितना होता है 0, राइट? सो फॉर ग्राउंड टू टॉप, फ्रॉम ग्राउंड g to top a, v इक्वल टू u प्लस at। v कितना है, क्योंकि सबसे ऊपर आने के बाद ऑब्जेक्ट रुक जाता है, एट द मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी इज 0। u तो u है माइनस g, और टाइम कितना है t, कैपिटल T। तो कैपिटल T क्या आ गया आपका, gt इक्वल टू u, तो t इक्वल टू u बाय g, t इक्वल टू u। माइनस कैसे आएगा, y माइनस, ये माइनस मैंने कर दिया ना, इसको शिफ्ट कर दिया, तो माइनस जी टी विल बिकम प्लस जी टी इक्वल टू यू, तो टी विल बी यू बाय जी। ओके, तो ये आपको मिल जाएगा u माइनस जी, u बाय जी माइनस टी। गुड, तो ये आ गया u माइनस जी जी कैंसल, और ये आ जाएगा u माइनस यू, माइनस माइनस प्लस, प्लस जी टी, g और t, माइनस और माइनस प्लस। इज दिस क्लियर? ओके, तो ये कैंसल कैंसल, व्हाट इज टाइम ऑफ एसेंट टोटल इज gt, है ना, सॉरी v1, सॉरी फॉर दिस इज v1 और u2। ओके, क्लियर यहां तक? अब थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन करने के फॉर्म में आया ये। नाउ यू विल बी पुटिंग इन s2, u2 is gt, ये gt है, और अलग से t2 मतलब t, वो अलग से बाहर है, तो यहाँ पे और एक t, प्लस की यहाँ पे माइनस, माइनस जी बाई टू, क्योंकि अभी भी तो ऊपर ही जा रहा है, और आखिरी में t2 स्क्वायर मतलब t स्क्वायर, तो s2 इक्वल टू जी टी स्क्वायर माइनस जी टी स्क्वायर बाई टू। एक में से आधा गया तो कितना बचा, आधा, तो इट इज जी टी स्क्वायर बाय 2, जी टी स्क्वायर बाय 2, ऑप्शन नंबर ए। मैं वापस बता देता हूँ, क्वेश्चन अच्छा है, समझ लो। यू थ्रो ऑब्जेक्ट अप, और आपको पूछा है कि आखिरी के 30 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। इमेजिन दिस कि पहले तो ग्राउंड से मैक्सिमम तक जाने के लिए जो टाइम लगेगा, टाइम ऑफ एसेंट कैपिटल टी, राइट? फिर हमने बोला ग्राउंड से बी, बी से ए, राइट? तो ग्राउंड से टोटल ए तक था कैपिटल टी, बी से ए तक था स्मॉल टी, तो ग्राउंड टू बी कितना हो गया टाइम, टी माइनस टी, कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी। नाउ हमको पता है कि डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी, इसका यूज करना ही पड़ेगा। उसमें अब प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे यू मतलब इनिशियल, इनिशियल मतलब बी पे कितना, क्योंकि आपको क्या पूछा है, आखिरी के टी सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आखिरी के टी सेकंड मतलब बी से स्टार्ट होके ए तक, स्टार्ट कहाँ पे हुआ, बी, तो बी पे यू की पता है कि आपको, नहीं, तो पहले फाइंड करो बी पे इनिशियल वेलोसिटी, मतलब पहले केस का फाइनल, तो पहले केस का फाइनल कैसे फाइंड करते हो, v इक्वल टू u प्लस एटी, तो v1 इक्वल टू u1 प्लस 81, u1 वॉज u बोला ही है, और a इज माइनस जी, t1 इज कैपिटल T माइनस स्मॉल t, तो उसको सॉल्व कर लिया। अब मिल गया u माइनस जी कैपिटल T माइनस स्मॉल t, बट कैपिटल T रिमेंबर वाज टोटल टाइम ऑफ एसेंट, ऊपर जाने के लिए टोटल टाइम कितना लगा। तो जब आप टोटल टाइम की बात करते हो तो ग्राउंड से सीधा सीधा टॉप तक, तो ग्राउंड पे स्पीड कितना u, टॉप पे कितना 0, तो v इक्वल टू u प्लस एटी, यूज करके कैपिटल T मिल गया u बाय जी। ये कैपिटल T आपने डाल दिया यहाँ पे,
सिंप्लीफाई किया तो u2 विच इज v1 विच इज नथिंग बट gt। ये हो गया आपका b पॉइंट पे इनिशियल स्पीड, और ये इनिशियल स्पीड जाएगा S2 के इक्वेशन में, एंड देन यू जस्ट हैव टू सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, a balloon is at a height of 81 meter and is ascending upward with velocity of 12 meter per second. A body of 2 kg weight is dropped from it. If g value is 10, the body will reach the surface in how much time? I think we have solved this or something like this. I don't remember was this or something like this, but anyways, because we have time, we will solve question again. तो हमारे पास एक बलून है which is at a height of 81 meter with respect to ground. Then it is ascending upwards with some velocity of, I'm not saying initial, it is going up with a velocity of how much? 12 meter per second. So you have a body of 2 kilogram which is dropped from this. इससे आपने ड्रॉप कर दिया। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ड्रॉप करना मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। वो कब होता है, जब आप एक ऐसी जगह से उसको ड्रॉप कर रहे हो जो खुद नहीं मूव हो रहा है। यहाँ पे बलून जा रहा है ऊपर और आप उसको ड्रॉप कर रहे हो, तो इस केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगा, इसका इनिशियल वेलोसिटी होगा -12 मीटर पर सेकेंड, राइट। देन आपको टाइम पूछा है, टाइम टेकन बाय दिस ऑब्जेक्ट टू रीच द सरफेस ऑफ अर्थ। आपके पास गिवन डेटा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और क्या है, डिस्टेंस। तो व्हाट विल यू डू, s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। s मतलब 81 माइनस 12t, a की वैल्यू 10, तो 10/2 इज 5t स्क्वायर। तो आपको मिल जाएगा 5t स्क्वायर माइनस 12t माइनस 81 इक्वल टू 0। तो यू विल नॉट फाइंड एनी टू नंबर्स जिसका मल्टीप्लीकेशन मतलब -81 into 5 और एडिशन -12 हो। तो यू हैव टू यूज रूट्स ऑफ अ quadratic equation, and you know what are the roots of a quadratic equation? Minus b plus minus under root of b square minus 4ac upon 2a. Very good, upon 2a, very very important. ओके, अगर 2a लिखना रह गया तो गए काम से। तो कंपेयर करते वक्त ये होता है a, ये नेगेटिव साइन के साथ होता है b, और ये नेगेटिव साइन के साथ होता है c। तो a is 5, b is 12 and c is -81। a is 5, b is -12 and c is -81। तो यहाँ पे माइनस ऑफ -12 प्लस माइनस -12 का स्क्वायर, -4a is 5, c is -81 upon 2 into a. This is 12 plus minus under root of 144. This is easy है, कैसे easy है? This is 20, 162, 162 और यहाँ पे बीच में प्लस अपॉन 10। ओके, तो दिस इज 12 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 144 और 1620, 1764 by 10, रूट ऑफ 1764 नहीं, ऐसा नहीं करते उसको। व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 30? 40, 50। ओके, गुड। तो स्क्वायर ऑफ 40 इज 1600। स्क्वायर ऑफ 41, स्क्वायर ऑफ 41, 41 into 41, 41 into 4, एक मिनट, do not create mess inside your brain. Think
थिंग 41 into 41 ये होता है 41 into 40 plus 41 into 1। 41 into 41 करना था, हमने 41 into 40 कर दिया, मतलब एक छोड़ दिया, तो वापस ले लो साथ में। 164 1640 41 हाउ मच 1681 और हमारा यहाँ पे आया था 1764, तो उससे काम नहीं चलेगा, फिर 42 चलाना पड़ेगा। तो 42 से चलाओ काम, अब 42 into 42 42 स्क्वायर मतलब 42 into 40 और 42 into 1, तो हाउ मच इज दिस 1764 पक्का। तो ये रफली क्या एग्जैक्टली दिस इज 42 12 प्लस माइनस 42 बाय 10। अब ऐसा है कि माइनस तो छोड़ ही दो। क्यों छोड़ दो? क्योंकि अगर माइनस लोगे तो 12 माइनस 42 माइनस 30 बाई 10। अभी टाइम नेगेटिव होता नहीं है, तो टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए माइनस साइन छोड़ दोगे। तो t इक्वल टू 12 प्लस 54 बाई 10 मतलब 5.4 सेकेंड। 5.4 ऑप्शन नंबर सी। Well, by the way, I want you to know one more way of solving this. ध्यान दो, then you will have time to note down. See, what is important is ये इतना सारा हमको करना पड़ेगा, उससे बेटर एक चीज है, that is यहाँ पे आपने ये एक इक्वेशन लिखा 81 इक्वल टू माइनस 12t प्लस 5t स्क्वायर, राइट। इक्वेशन सेटिस्फाई कब होता है? जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम हो। एक साइड तो 81 है, पता ही है, दूसरे साइड पे 12t विद नेगेटिव और 5t स्क्वायर। पुट फर्स्ट वैल्यू डाल के देखो। इफ यू पुट, मैं सिर्फ लिख देता हूँ ऐसा, 5t स्क्वायर माइनस 12t, ये हमको फाइंड करना है। अगर मैं 1.5 डाल देता हूँ, 1.5 का स्क्वायर 2.25 इंटू 5, अरे 2.25 इंटू 10 करो पहले, 22.5 का हाफ करो, 11.25 और यहाँ पे t कितना है वापस 1.5 इंटू 12 18। क्या आया ये? क्या आया टोटल? पहले टर्म क्या आई थी? 11.25 माइनस 81 तो होगा ही नहीं, नेगेटिव आ रहा है ऊपर से, छोड़ दो। 4 रफली 4 स्क्वायर इज 16 इंटू 5 80, राइट। उसमें से कुछ माइनस करोगे तो 81 कैसे आएगा? नहीं आ सकता ना, 81 नहीं आएगा। 6.75 या फिर 5.4 का देख लो, 5.4 या फिर 5.5 बोल लो इसको। 5.5 का स्क्वायर, because you know what is the square of number ending with 5. How many of you don't know how to find out square of number ending with 5 quickly? You don't? If you don't know, tell me. 5 अगर ऐसा है 55 तो पहले इसका स्क्वायर लिखो, इसका अगला नंबर लो और मल्टीप्लाई करो, 6 5 जा 30, तो राइट। तो 5.5 अगर लेता तो 30.25 इंटू 5, 30.25 इंटू 5, 30.25 को 30 लिख दो ना, इंटू 5, व्हाट इज 30 इंटू 5? 150, ये 150 आएगा। माइनस 12 इंटू 5.5, 12 5 जा 60, ओके 60 और आगे वो 0.5 66 माइनस करो, कितना आया? रफली अरे रफली 84 आता है, रफली ये 80 हो गया, राइट आ गया ना। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, अगले के लिए करोगे तो नहीं आएगा वो 6.75 को 6.5 मान लो, नहीं आएगा आंसर। तो this is how you can also solve approximately without doing that roots. Next question. So this is not relevant anymore.
a stone thrown upward with a speed u from the top of the tower reaches the ground with a velocity of 3u. The height of the tower is. तो ऐसा है, आपके पास एक टावर है, you are throwing a stone from the top of the tower, so a stone is thrown from the top of the tower. तो पहले तो ये ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे आएगा. इसके मेथड ऑफ सॉल्विंग दो है. वन इज पहले टावर के टॉप से मैक्सिमम तक, फिर मैक्सिमम से ग्राउंड तक, राइट? करेक्ट. लेंथी प्रोसेस, दैट इज लेंथी प्रोसेस. एक है दूसरा शॉर्टकट वे, डायरेक्टली पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से डायरेक्टली ग्राउंड तक. तो हम शॉर्टकट ही यूज करेंगे. यहाँ पे दो केसेस कर सकते हो, पर टाइम जाएगा तो नहीं करेंगे हम लोग. हम क्या करेंगे, डायरेक्टली देखते हैं. अब तो इसमें एक ही होता है, जब आप डायरेक्ट पूरा कंबाइंड देखते हो, देखो क्या होगा. जब ए से सी तक जाएगा मान लो, तो ऑब्जेक्ट इज गोइंग अगेंस्ट ग्रेविटी, तो ए विल बी इक्वल टू माइनस जी. फिर सी से ग्राउंड पे जब आएगा तब प्लस जी. यहाँ पे जब कंबाइंड करके देखते हो ना, तो इनिशियल पॉइंट पे कहाँ जा रहा था वो देखो. इनिशियल कहाँ जा रहा था, ऊपर, तो माइनस जी लेना, उसमें प्लस जी नहीं ले सकते. दैट इज द ओनली थिंग यू नीड टू रिमेंबर. अब हाइट ऑफ द टावर एच पूछा है, मतलब बेसिकली डिस्प्लेसमेंट मैं सिर्फ एच ही लूंगा. मैं ऐसे नहीं बोलूंगा वो ऊपर गया, एक्स्ट्रा कुछ नहीं. स्टार्टिंग से एंड तक एच एच है वो. और क्या बताया आपको, इनिशियल स्पीड u, फाइनल स्पीड 3u, और डिस्टेंस. And what is the formula which relates v u a s v square equal to u square plus 2as. यहाँ पे v square is 3u का square equal to u square minus 2gh, right? Okay, maybe here it is trouble for us to write down minus. क्यों, समझेगा थोड़ी देर से, वो करेंगे यहाँ पे. ओके, तो याद रखना. फिलहाल प्लस लिख के चलते हैं, देखते हैं. दिस इज 9u स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh. सो दिस इज 8u स्क्वायर इक्वल टू 2gh, 1 जा एंड 4 जा, तो h इक्वल टू 4u स्क्वायर बाय g है क्या? यस, ऑप्शन नंबर बी. तो अब only in this case हमने प्लस लिया है, otherwise then you will get. हाँ, उसका भी बताता हूँ. वेट, the problem here is, ऐसा अगर आपने सोचा कि ऐसा कैसा है, यहाँ पे प्लस वहां पे माइनस, कंफ्यूजन हो रहा है, तो डोंट वरी, ठीक है, माइनस लिखो. बट इनिशियल वेलोसिटी ऊपर के डायरेक्शन में, तो इनिशियल वेलोसिटी विल बी माइनस. ओके, तो वैसा भी सोच सकते हो. तो ये माइनस माइनस होगा, तो वैसा भी सोच सकते हो. सब माइनस माइनस, तो माइनस माइनस निकल के सब प्लस, तो ये भी माइनस होगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इज अप. फाइनल वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ क्या दिया है, इनिशियल. फाइनल वेलोसिटी इज 3 टाइम्स ऑफ इनिशियल, तो ये माइनस, ये भी माइनस, तो सब माइनस माइनस निकाल के प्लस. तो वैसा भी आप इमेजिन कर सकते हो. दिस इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ सॉल्विंग. There is one more way of remembering. I was expecting someone will say, you see, कुछ भी गलत नहीं था. यहाँ पे आपने a इक्वल टू माइनस जी सही लिखा है. You have written it correct. a इक्वल टू माइनस जी. अरे बट मैंने एक दिन बताया था, डिस्टेंस आप नीचे मेजर कर रहे हो. नीचे मतलब ओरिजिन के नीचे, मतलब क्या होता है, नेगेटिव. ओके, तो दिस इज मोर अप्रोप्रिएट वे ऑफ सेइंग. तो a भी माइनस जी है क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी है इनिशियली, लेकिन डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट इज कवरिंग बिलो द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से नीचे, मतलब माइनस h. तो h के यहाँ पे क्या लोगे, माइनस h. अब हो गया पॉजिटिव. यस, so this is how you need to remember. This is the correct way of remembering. Okay, clear? Then next question. A stone dropped from the top of tower touches the ground in 4 seconds. The height of the tower is, अरे s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at square. u है 0 क्योंकि ड्रॉप किया है.
A है G, G by 2 T square is equal to G के लिए लूंगा मैं 10, T is 4. So this is one. This is basically I will keep it like this. मैं इसको कर दूंगा solve. 10 by 2 and this is 16, 1 and 8, 80 meter. Option number A. So that's the end of motion in straight line. Done.